On behalf of the Department of Law, Maharaja Praseed Institute of Management Studies, it gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to this distinguished gathering at the valedictory ceremony of the 4th International Games Model United Nations Annual Parliament 2025. Over the past 2 days, this campus has truly come alive with the spirit of dialogue and debate. The corridors of Maine have echoed with ideas that question, reimagine, and inspire. Through rigorous deliberations and meaningful exchanges, our young participants exemplified what responsible and informed leadership looks like in the 21st century. As we gather here to mark the conclusion of this intellectually enriching journey, let us take a moment to celebrate the curiosity, compassion, and courage that every delegate, executive board member, and organizer has brought to this forum. Indeed, this 4th edition of the Maine's Model United Nations Annual Parliament has once again reaffirmed our faith in the youth, the torchbearers of dialogue, democracy, and equality. It is said that leadership is not about being in charge. It is about taking charge with empathy and understanding. Over the course of this conference, our young leaders have not only represented countries and constituencies, but also values of peace, cooperation, and mutual respect. We are deeply honored to have among us our revered editors, respected faculty, mentors, and our brilliant participants. Each one of you has played an integral role in making this edition a resounding success. With that, let us begin this valedictory ceremony. To begin this afternoon on an auspicious note, let us invoke the divine blessings of Maa Saraswati, the goddess of wisdom, knowledge, and eloquence, so that her light continues to guide our minds and illuminate our path towards truth and learning. Head of the Department of Law, to deliver the welcome address. Sir has been the guiding force behind the academic vision and growth of our department. We are privileged to have his words set the tone for today's ceremony. Good afternoon to everyone present here. Namaskar, प्रणाम। 2 दिन के इस आयोजन के बाद सबके चेहरों पर मैं मुस्कान देख रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा टास्क जो काफ़ी दिनों की तैयारियों के बाद जब पूरा होता है तो निश्चित रूप से एक संतोष, एक मुस्कान चेहरे पे होती है, होनी भी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज भारत के जो संस्कृति है, उस संस्कृति को यदि हम देखें तो आज भी भारत की संस्कृति में एक बहुत बड़ा दिल है। आप में से शायद बहुतों को इस बारे में पता है और कुछ को शायद, क्योंकि आधुनिक शिक्षा पद्धति ऐसी बनी कि हमें भारतीय संस्कृति से ज़्यादा साक्षात्कार नहीं करवाया जाता है। कितने बच्चों को पता है कि भी आज से जो भारतीय संस्कृति में
विवाह बंधन का जो आयोजन है वो 4 महीने के ब्रेक के बाद आज देवोत्थानी एकादशी है, देव प्रबोधनी एकादशी जिसको कहते हैं कार्तिक मास में। तो इस दिन को बड़ा पवित्र माना जाता है और शुभ कार्यों के लिए, विशेष रूप से मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह बंधन, तो वो शादियों का सीजन भी इसको कहते हैं कि आज से शादियों का सीजन शुरू हो गया। तो ये एक भारतीय संस्कृति की महानता है। 4 महीने पहले जब वर्षा काल शुरू होता है तो उस समय देवशयनी एकादशी होती है, देवों की शयनी। तो ये इसका हमें समझना चाहिए। और हो सकता है कि इस विषय पर, भारतीय संस्कृति पर कोई डिबेट का विषय रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सभी उस पर रिसर्च करेंगे और फिर तथ्यों का पता लगाएंगे। तो आज की इस पावन अवसर पर और एनुअल एंड पार्लियामेंट्री यूथ पार्लियामेंट जो 7 तरह के कॉम्पिटिशन्स सबने खूब मेहनत करी, इसके समापन समारोह अर्थात वैलिडिटी सेशन के लिए और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज हमारे बीच आदरणीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी, जो कि हमारे माननीय ट्रस्टी हैं। और सबसे उत्तम बात क्या है कि इनके आने का महत्व, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौरक्षा संघ के दिल्ली प्रांत के संरक्षक भी हैं। तो निश्चित रूप से भारत की जो प्राण, जो आत्मा है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो उसमें गायों का कितना महत्व है, तो ये इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है और अपना पूरा जीवन पिछले 40-50 साल से और समाज सेवा को देना और हमारे विनम्र आग्रह, बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए मैं सभी की तरफ से, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से, आप सभी पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स की तरफ से आदरणीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। वेलकम। और ऐसे पावन अवसर पर आज हमें उनका आशीर्वाद मिला, आशीर्वचन मिलेंगे उनके कर कमलों से। अभी आपने देखा कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि 2 दिन के इस कंपटीशन में आप सबने भाग लेकर और अच्छा महसूस किया होगा, अच्छी यादें लेकर जाएंगे। इसी के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करते हुए अपना स्थान लेता। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your encouraging and insightful words. Now we would like to call our faculty convener, Mrs. Purna. We just welcome our chairman, sir, and Professor Dr. Rajni Bhattacharya, whose vision and mentorship have been instrumental in nurturing both academic excellence and holistic growth at NEEMS. As they are not here, so thank you in absentia for coming and attending the valedictory. Now we are honored to welcome our chief guest, sir, Shri Satish Chand Gupta, Control Board member, NEEMS. Sir's dedication to education and his inspiring guidance have always motivated us. So, सतीश चंद्र गुप्ता के बारे में मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगी। वो मेड्स के संस्थापक ट्रस्टीगण में से एक हैं और ट्रस्ट की 1998 में स्थापना के समय से ही ट्रस्ट की दिनों-दिन विकासोन्मुख गतिविधियों में उनका सक्रिय योगदान रहा है। वर्तमान में आदरणीय सतीश चंद्र गुप्ता सर जी मेड्स के कंट्रोल बोर्ड सदस्य भी हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गौ सेवा संयोजक दिल्ली प्रांत
है एवं अन्य अनेक सामाजिक गतिविधियों में लगातार सर का योगदान रहता है। सर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, उसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं और मैं चाहूंगी कि आप आए और अपने मुखाबिले से बच्चों को प्रोत्साहन दें। महाराजा सैन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 दिन से आप यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के इंचार्ज के निवेदन पे आप सभी यहाँ आए और आपने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूथ पार्लियामेंट, इस विषय पर 7 भागों में पहले तैयारी की, फिर 2 दिन से आपने कॉम्पिटिशन में भाग लिया। इसका आपको दिल से बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही युवा आगे बढ़ के काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अपने आदरणीय फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर जी, चेयरमैन श्रीमान नीति भोरिया जी, उनका ध्येय है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम से इंस्टीट्यूट है, तो महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर भी हमें कुछ पढ़ना चाहिए कि महाराजा अग्रसेन कौन हुए हैं, उनका क्या ध्येय था। उनका एक ही ध्येय था, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते रहना, इतना आगे जिसका कोई छोड़ नहीं, कि अपने व्यक्तित्व को हम इतना आगे बढ़ाएं जिसका कोई अंतिम छोड़ नहीं है। आगे बढ़ाने के लिए 2 बातें आती हैं। एक तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, उसके साथ साथ हम अच्छे इंसान भी बनने चाहिए। जो अपना इस अग्रसेन सोसाइटी का एक कुल गीत है, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के आदमी परवेज जी हैं, सभी स्टाफ है, उन्होंने तो सुना है। उस गीत के अंदर यही कहा गया है कि भाई हम राष्ट्र प्रथम, हम ठीक रहे, ये अच्छी बात है। हम जहाँ रहते हैं वो बस्ती ठीक रहे, वो अच्छी बात है। हम जिस शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ जैसे वो ठीक रहेगा तो अपना राष्ट्र भी ठीक रहेगा। तो हम जो भी काम करते हैं, पानी पीने से लेकर के पढ़ने तक, और उसके बाद यहाँ से पढ़ाई करने के बाद हम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। कोई बड़ा एडवोकेट बनेगा, कोई आईएएस, कोई आईआरएस, ऐसे सभी बनेंगे। लेकिन वो बनते भी कुछ बंधु ऐसे भी रह जाते हैं जो मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाते, अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं, वो भी कम सुखी नहीं है। मैं भी आपको आज बता रहा हूँ, अपने जीवन में लो का मैं एक दिन स्टूडेंट रहा। आप एक दिन स्टूडेंट कैसे रहे हो? उस समय के अंदर ना तो एडमिशन में कोई दिक्कत होती थी, ना कोई एडमिशन टेस्ट होता था। मैंने 1976 में बीकॉम पास करी, तो डीयू के अंदर लो में आराम से एडमिशन हो जाता था। तो मैंने उस एडमिशन ले लिया, परंतु परिवार की आवश्यकता थी कि काम करना। मैंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। रक्षाबंधन को काम की छुट्टी थी, रक्षाबंधन को कॉलेज की छुट्टी नहीं होती। मैं उस दिन डीयू में लो की क्लास में चला गया। तो जैसे ही मेरा रोल नंबर आया, मैंने यस सर बोला, तो वो प्रोफेसर साहब हैरान कि भाई इस रोल नंबर से तो कभी यस सर आई नहीं। तो उन्होंने मजाक में जो बात बता रहा हूँ, 76 की बात है कि भाई कोई स्टूडेंट कभी आया हो उसकी तो प्रॉक्सी बोलो, जो कभी आया ही नहीं उसकी प्रॉक्सी किस लिए बोलो? सब क्लास में आया। तो मैंने कहा जी आज प्रॉक्सी नहीं है, आज एक्चुअली। तो कहेंगे क्लास के बाद मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं क्लास के बाद मिला। उन्होंने कहा भाई अब तक के तुम्हारे लेक्चर पूरे हम कर देंगे, लेकिन इसके बाद आपको रेगुलर होना पड़ेगा। परंतु भाग्य कुछ और ही कह रहा था। मैं लो नहीं की और मैं अपने व्यापार में काम में लग गया। परंतु आप ये ध्यान करो, ये जो अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, ये कितना बड़ा दिल रखते हैं।
कि आप 2 महीने छुट्टी रहे फिर भी आपके लेक्चर पूरा करना चाहते हैं तो आपको इस सब का मान करना चाहिए। हंसी मजाक में कभी कभी लगता है कि आप प्रोफेसर मैडम हैं, प्रोफेसर सर हैं, कोई बात रखने में कोई भूल कर दी, आपको लगता है, असली में तो भूल नहीं है। तो उसका हमें मजाक करना चाहिए ना, बहुत ध्यान से उसको समझना चाहिए, अकेले में पूछ लेना चाहिए यदि आपने जो आज ये बात कही है मेरे मन को नहीं आती, कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है क्या। तो ये अभी जो आदरणीय प्रवीण गुप्ता ने बात कही है संस्कार, सनातन हिंदुत्व के बहुत बड़ा ये संस्कार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हिंदू धर्म इज नॉट ए रिलीजन, डू यू फॉलो व्हाट इज रिलीजन एंड धर्म। रिलीजन और धर्म में कोई अंतर समझते हैं क्या? कोई बच्चा ठीक समझता है तो आपको लिख भी सकता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म। रिलीजन एक पूजा पद्धति है, हम कहीं भी जाकर किसी मंदिर में किसी गुरुद्वारे में कहीं भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन धर्म क्या है? माँ का धर्म अलग है, बेटे का अलग है, बेटी का अलग है, दादा का अलग है। जैसे दादाजी का क्या धर्म है कि मैं अपने पोते पोती को ऐसा संस्कार दूं कि वो जीवन में पढ़ाई के साथ अच्छा इंसान बने। माँ का क्या धर्म है? अपने बच्चों के लिए ऐसा भोजन लालन पालन करे कि उसके बच्चे स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। बच्चों का क्या धर्म है? अपने दादा दादी घर में जो बुजुर्ग हैं एक बारी कराते जरूर उनके चरण छूने चाहिए। अपने घर में कोई भी बुजुर्ग है सबसे पहले उसके चरण छूने चाहिए, फिर माता जी पिताजी सास ससुर इनके चरण छूने चाहिए। ये संस्कार की बात है, इसको आप यदि अपनाओगे अच्छा काम करने के लिए, जैसे आप गुप्ता जी ने कहा कि देव उगनी गैस है, हम सबको पता है आज से विवाह शादी का प्रारंभ है, लेकिन सनातन संस्कृति की बात को भूल जाते हैं कि दिवाली किस दिन मनाई जाती है? अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या तिथि से नहीं आता, डेट से नहीं आता, अमावस्या सूरज से जुड़ा हुआ है। तो देव उगनी गैस अपने किसी अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं जुड़ी, वो अपने अध्यात्म से जुड़ी हुई है, उसी से हमारे सब काम होते हैं। तो इस इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। अब 2 मिनट के लिए वापस आते हैं, जिसके लिए आपने बहुत दिन से मेहनत करी है। यूनाइटेड नेशन, अब आप सबको पता होगा कि 1945 में इसकी स्थापना हुई। आज कितने देश के मेंबर है? कितने देश मेंबर है कोई भी बताएंगे? 13 वर्ष 193 या 7, ठीक है। परंतु वो जो काम कर रहा है उसकी स्थापना किसी देश के लिए हुई थी कि वर्ल्ड वार 2 समाप्त होने वाला था, तो उस समय बहुत नुकसान हुआ था। तो सभी देशों ने सोचा कि भाई शांति के लिए, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, तो कोई एक संगठन बनाया जाए। उसका एक संगठन बना। सूक्ष्म में, थोड़े में, छोटे में बात करें तो क्या ये अपने उद्देश्य में सफल हुआ है? अभी 4 साल से किसी के अंदर लड़ाई चल रही है? रसिया यूक्रेन। और किसमें युद्ध चल रहा है? इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, गाजा, कुछ भी उसको कह सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है? काफी देश कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन इसी काम कर रही है। उसके पीछे कारण है। विंडो पावर कितने लोगों को है? 5 कंट्रीज को है। जब वो देखते हैं कि किस कंट्री में आपस में झगड़ा है, मेरे फेवर में झगड़ा है, ये दोनों झगड़ते रहे तो अच्छा है, तो उस लड़ाई को बंद करने के लिए वो प्रस्ताव को पास नहीं होने देता, विंडो पावर यूज कर लेता है और वो लड़ाई बंद नहीं होती।
90 कंट्रीज के अंदर औरों को कोविड की दवा क्यों नहीं मिलती? सुधार की आवश्यकता है। जो एक कानून संविधान 1945 में बना उसके अंदर ये कमियां हैं, तो ये सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसी तरीके से भी ट्रंप क्या मांग रहे थे, मुझे क्या मिलना चाहिए? तेरे बात कि मैं लड़ाई बंद करा रहा हूं तो मुझे शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो एक समिति बनी हुई है, उसने देखा भाई ना ये लड़ाई बंद कर रहा ना चोर कर रहा, उसका नाम नहीं है, ये एक अच्छी बात। तो इसी तरीके से इसमें सुधार होना चाहिए। अब दूसरी बात है इसके साथ में यूथ पार्लियामेंट, ये संस्था और इसकी मैनेजमेंट, इसके सभी पढ़ाने वाले भाई बहन इस बात को सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई करते करते यदि स्वतंत्रता के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में भी सीखेंगे तो जीवन में लाभ मिलेगा। कि हम पुरानी बात करेंगे, जब हम पढ़ते थे तो एक तख्ती में लिखते थे, स्लेट में लिखते थे, परंतु अब सब कुछ मोबाइल में परिवर्तित हो गया। तो मोबाइल को कितना यूज करना, टीवी को कितना देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उनका जितना ठीक समय हो उतना ही यूज करना, बाकी समय को थोड़ा इसको खाली रखना। हम सब पढ़े लिखे गूगल पर चेक भी कर सकते हैं कि जितनी देर ज्यादा मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के सड़क पार कर रहे हैं, तो कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। कई दफा मैंने सुना है, देखा है कि ईयरफोन लगा के सड़क पार कर रहे हैं और पीछे से हॉर्न बज रहा है, दुर्घटना हो जाती है। तो कुछ बातें ये हैं, इन पे ध्यान देना। अपने पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र प्रथम, हम किसी ना किसी सामाजिक संगठन से जुड़े। सामाजिक संगठन का उद्देश्य होता है, 2-3 लाइन छोटी सी, मैं गायक नहीं परंतु जिसने गाया है उसके भाव को आपको सामने रख रहा हूं। संगठन गढ़े चले, सुपंथ पर बढ़े चले, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चले। इस कवि का ये भाव है, हम एक संगठन बनाते चले, लेकिन ऐसा संगठन बनाए किसी ने आपको उकसा दिया ताली बजाने के लिए, या हम सब के समझ में आए ये बात, तो मैं आप सबको साथ दुआ देता हूँ कि हम संगठन बढ़े चले। संगठन ऐसा बढ़े जैसे पत्थर में से मूर्ति बनती है। पत्थर को कोई नहीं पूछता, परंतु जब उसकी मूर्ति बन जाती है तो उसको सब पूछते। तो संगठन ऐसा बनाए जो हमें सुमंत पर लेकर चले, अच्छे रास्ते पे लेकर चले, और ऐसे काम करें जिसमें राष्ट्र का भला हो। मैं कभी कभी एक दो बातें कहता हूँ कि प्लास्टिक की बोतल का बहुत प्रयोग बढ़ गया। मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकता हूँ कि प्लास्टिक की बोतल का पानी पीऊंगा, पिएंगे क्या, रोक सकते हैं क्या? कि मेरी मजबूरी है, एक हैवी प्लास्टिक की बोतल खरीदूंगा, घर में यूज करूंगा, थैले में रखूंगा, हर रोज छोटे वाली पानी की बोतल नहीं प्रयोग करूंगा। मैं विवाह शादी फंक्शन में जाता हूँ, एक बोतल पीता हूँ, एक हाथ धोने में बेकार करता हूँ, 2 जेब में डालता हूँ। ऐसा करना क्या? इन बातों से कैसे बचें? तो ये 2-3 छोटी-छोटी बातें थी। इस इंस्टीट्यूट का जो उद्देश्य है कि हम सब ऐसे पत्थर में से मूर्ति बने, हम सबको भी पूछे। आपने सुना भी होगा जो इस इंस्टीट्यूट के हैं, बाकी भी बता कर सकते हैं कि अभी यहाँ आईएएस के अंदर 5 रैंक में बच्चा आया इस इंस्टीट्यूट का, मिलिट्री में भी है, या एनएसएस है, एनसीसी है, उन सब के लिए बच्चे सिलेक्ट हो गए।
तो ये सुगंध पर चलने का, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाने का, राष्ट्र के प्रति काम करने का, ये सब उद्देश्य है। हम भी व्यक्तिगत जीवन में कैसे इसको ठीक करें। अब जैसे मेरे पीछे भी 2 लाइन है, उस पर भी 2 मिनट बात रखेंगे, फिर आप सब पारितोषिक के लिए बैठे हैं, उस पर आएंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई भी बताएं। हाँ जी, 1925। बहुत सुंदर। 1925 में स्थापना हुई थी। अब कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष हो गए। तो हम में से इसको भी समझें कि कितने संगठन 100 साल से ज्यादा इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। 100 साल के अंदर अनेकों संगठन बनते हैं और विराम हो जाता है। बहुत धन्यवाद। तो हम सबको आज तक गूगल से बात बताता है, गूगल पर पढ़ना चाहिए, व्हाट इज आरएसएस समझना चाहिए। मंदिर में पुजारी होता है, भगवान संत होता है, उसको पहचानते हैं, लेकिन संघ के अंदर जो कार्यकर्ता काम करता है उसको पहचान नहीं है, न वो पहचान बनाना चाहता। समाज में मिलकर समाज से सीख करके उस प्रयोग करता है। तो अब 100 वर्ष हुए हैं, तो कुछ कार्यक्रम संघ में सोचे, उसमें से एक कार्यक्रम तो हुआ था विज्ञान भवन। पूजनीय सरस्वती जी ने 3 दिन व्याख्यान माला दी। यूट्यूब पर हम उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि विज्ञान भवन व्याख्यान माला। ये गूगल पर लिखेंगे आरएसएस के, उसमें जाकर के तो आपको पढ़ने को सुनने को दिशा मिलेगी। अब ये गृह संपर्क कि प्रत्येक घर में, हिंदू घर में जाना, उनसे 2 मिनट संघ के बारे में बात करना, ऐसा 30 नवंबर से प्रारंभ होगा। आरएसएस के युवा बच्चों के लिए ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी है, ज्वाइन आरएसएस। आप यदि कोई चाहे तो उस पर ज्वाइन आरएसएस में डिटेल डाल सकते हैं। आपसे कोई संपर्क करेगा कि किस समाज के काम में जुड़ना चाहते हैं। कभी कभी आपको बात ध्यान आती है कि अभी तो पढ़ रहे हैं, मैं समय नहीं है, फिर हमारी सर्विस लग जाएगी तो समय नहीं बचेगा, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो समय नहीं बचेगा, फिर अगर प्रौढ़ हो जाएंगे तो हम चले फिर आएंगे बचेंगे। तो मेरा निवेदन क्या है, हर एक वर्ग के अंदर समाज का काम कर सकते हैं, कभी भी 15 मिनट निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छी बात, सोशल मीडिया का एक्टिव होकर कर सकते हैं, नेगेटिविटी को रोक सकते हैं। और मेरे ध्यान से मेरा परिचय है गो सेवा संयोजक। मेरा जो काम है देसी गाय को समाज में दोबारा प्रतिष्ठित करना। देसी गाय विदेशी गाय के बारे में हम में से कोई भी 2-3 विद्यार्थी कुछ बोल सकते हैं क्या? व्हाट इज देसी काउ? आप व्हाट इज अमेरिकन जर्सी काउ? किसी ने कुछ ऐसा सुना हो कभी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 काउज? कोई भी और बोल सकता है या नहीं पता तो कोई बात। देसी गाय को विदेशी गाय को कैसे पहचाने? ऐसे किसी को पहचान होता है क्या? तो बताइए। ब्लैक एंड व्हाइट होगी वो जर्सी होगी, और देसी वाली थोड़ी हाइट कम होगी, ब्राउन कलर की या वाइट। कोई और बात आप मिले? सर जी जो हमारी देसी वाली होती है उसका थोड़ा सा हम्प होता है, बिल्कुल ठीक। और उसको फिर आप पहचान लेते हो। आप देसी गाय है और विदेशी पशु, इसको क्यों कहते हैं? जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की जनसंख्या कितनी थी? कोई भी बताए? 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, जब भारत की जनसंख्या कितनी थी? ये स्टडी करने के बिंदु हैं।
35 करोड़ जनसंख्या थी और भारत के अंदर गोधन कितना था? आगे बोल सकते हो। 35 करोड़ जनसंख्या थी और 65 करोड़ गोधन था। जब हम गाय की बात करते हैं तो सिर्फ गाय की बात नहीं करते, बैल की, सांड की, नंदी की, बछड़े की, सब की बात करते हैं। 65 करोड़ गोधन था। विदेशियों ने क्या समझा कि भारत की अर्थव्यवस्था, जीवन व्यवस्था सब गाय पे आधारित है, तो इनकी गाय को बदला जाए। उन्होंने मैन मेड गाय बनाई। उस गाय को बनाते हुए जैसे हम साइंस कितने आगे बढ़ गए, चंद्रमा में पहुंच गए, सूर्य में पहुंच गए, मंगल ग्रह में पहुंच गए, परंतु ब्लड नहीं बना पाए। साइंस ब्लड तो नहीं बना पाई ना। तो ऐसी वो जो विदेशी साइंटिस्ट थे, गाय बनाते बनाते उसमें 4 कमियां रह गई। एक तो मैंने बताया, देसी गाय के ऊपर हम बना हुआ होता है। देसी भाषा में गांव में कहने के लिए हम उसको शिवजी की पिंडी बोल देते हैं। देसी गाय के गले के नीचे एक कंबल लटकता है। विदेशी जो पशु है वो गले से प्लेन होता है, देसी गाय के गल कंबल लटकता है। जो भैंस ने रंगों की बात कही, वो रंग सभी गायों में सब किस्म के हैं। तीसरी बात है, देसी गाय के गोबर में कभी भी बदबू नहीं होती, बैड स्मेल नहीं होती। कभी भी देसी गाय का गोबर आप देखो तो बंधा हुआ होता है। मैं उसको बिल्कुल देसी भाषा में इमरती के रूप में कहता हूँ। विदेशी गाय का छितरा हुआ होता है। तो ये देखने से देसी गाय देसी का अंतर पता लगता है। अब एक प्रयोग मैं आपसे करवाऊंगा। अमेज़न से कोई सामान खरीदते हैं, फोन लगाएंगे अमेज़न, भैया एक बार अपना मोबाइल खोल लोगे, क्या सर्च करते हैं? एंटी रेडिएशन काउ डंग चिप, एंटी रेडिएशन काउ डंग चिप। जिसका निकल गया वो मोबाइल लेके आ गए। ये भैया ने निकाला है, इसके ऊपर छोटी सी काउ डंग चिप। ये मोबाइल में दिख है। 1 ग्राम की गाय का गोबर है, 1 ग्राम की। इसको 290 रुपए में बेच रहा है। अगर ये अमेज़न इसको बेच रहा है तो इसको कोई ना कोई खरीद रहा है, इसका कोई उपयोग है। बिना उपयोग के तो कोई नहीं खरीदेगा, अमेज़न बेचेगा भी नहीं। हम जो देसी गाय रखते हैं उनसे ये टिक्की बनवाते हैं। यही टिक्की उस अमेज़न को आपको मिल रही है। अगर देसी गाय का गोबर इतना 290 रुपए में बिकता है तो सड़क पे कोई गाय छोड़ेगा क्या? तो ये सबसे निवेदन है, वापिस आता हूं मैं, जिस उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम रखा है, राष्ट्र प्रथम, और अपने स्वार्थ में हमें काम करना है, लेकिन समाज को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो गूगल के ऊपर नेगेटिव बातें बहुत हैं, लेकिन पॉजिटिव भी हैं। तो इन बातों को सर्च करके समाज में फैलाना, समाज को बताना, ये मेरा निवेदन है। बाद में कार्यक्रम पूरा होने के बाद किसी ने व्यक्तिगत कोई बात कर ली हो तो 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बात भी कर सकता है। तो आपका जो उद्देश्य था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूथ पार्लियामेंट, उन दोनों को जोड़ते हुए हम आगे कैसे अच्छा करें अपने जीवन में, इस बात को मैंने ध्यान दिलाया है। बाकी आप सब समझदार हैं, हम जीवन में कैसे आगे बढ़ें, ऐसा आप सबको पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्र प्रथम रखते हुए सोचना चाहिए। ये कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। सर, है पूरी एमएमए सोसाइटी और मेरे परिवार की तरफ से आपकी आभारी हूँ कि आपने हमारे बच्चों को संस्कारों के बारे में बताया।
जीवन जीने का सही तरीका, अपने कर्तव्यों के बारे में उजागर किया, अपने सनातन धर्म के बारे में हम सबको दर्शाया और हम सबको आश्वासन देते हैं जो बच्चे हमारे बाहर से आए हैं कि हमें शांति का महत्व, अहिंसा परमो धर्मम, वसुदेव कुटुंबकम और गौ माता की सेवा को हम सभी अपनाएंगे, ऐसा हम आज जो है आपको आश्वासन देते हैं। और इसी को अपनाते हुए मैं अब एक्चुअली सर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे चीफ गेस्ट सर का अभिनंदन करें विद द मोमेंटो एट द सैपलिंग। हम अभिनंदन करने में हम बातों में रह गए हैं, सर का अभिनंदन जीवन जीने की कलाएं अगर हम सीख लें तो मुझे लगता है कि पढ़ाई को हम पढ़ लेंगे मगर ये सब संस्कार भी हमें सीखना बहुत जरूरी है, जो कि आज के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म से अगर मेरे एक भी बच्चा या दो भी बच्चा कुछ सीख के जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण जो है प्रभावशाली मेरे लिए रहेगा। इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने बच्चों की टीम को आगे बढ़ाती हूँ। As our founder chairman sir profoundly reminds us, समाज द्वारा समाज के लिए समाज की संस्था मेड्स. These words encapsulate the very ethos of our institution, service, learning and community. Let us now join together in the Maid School Geet, which beautifully reflects our collective values and institutional pride. देश है प्रथम अध्ययन दान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम अध्ययन दान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। महाराजों महाराजों की नाम, हमारा अग्रणी संस्थान। देश है प्रथम अध्ययन दान, अग्रणी शिक्षा का प्रयोगशाला कक्षा परिसर बने शोध संस्थान। देश है प्रथम अध्ययन दान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। तकनीकी वाणिज्य कुशलता, कौशल अभियांत्रिकी दक्षता, चिकित्सा विधि पत्रकारिता, कला ज्ञान विज्ञान सिद्धता। बहुविध शिक्षा से हम बनते जागृत प्रज्ञावान। देश है प्रथम अध्ययन दान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। पाठ्यक्रम के पाठ पठन से, सतत परीक्षण मूल्यांकन से, कार्य सफल होते उद्यम से, ना हो केवल मनोरथों से। इसी मंत्र को अपना कर हम होंगे चरित्रवान। देश है प्रथम अध्ययन दान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान।
advisors of the Maims MUN Society to present the event report and share the journey of this conference. Dalai Lama once quoted, "Peace does not mean an absence of conflict. Differences will always be there." Peace means solving these differences through peaceful means, Through dialogue, education, knowledge, and humane ways. I, Smriti Saral, and I, Praveen Kaur, the Chief Advisors of Maims MUN Society, heartily welcome you all to Maims 4th International Model United Nations Conference and Youth Parliament 2025. This edition stood as a celebration of diplomacy, dialogue, and democratic discourse. The event brought together over 200 plus passionate delegates from around the country. Combined with 19 talented executive board members, each driven by the desire to debate, deliberate, and design solutions for some of the world's most pressing challenges. With 7 dynamic committees representing various UN international bodies and thought-provoking agendas, the conference provided a rigorous intellectual platform for participants to sharpen their diplomacy and public speaking skills. Throughout the course of past 2 days, the delegates engaged in an intense yet constructive debate showcasing their research acumen, leadership, and commitment to global cooperation. This year marked a historic milestone for Maims. The first ever Youth Parliament was inaugurated as a part of this conference. The Youth Parliament embodied the spirit of participative democracy, encouraging students to discuss Indian national policies, governance issues, and the responsibilities of an empowered citizen. The inaugural ceremony was graced by the esteemed presence of our chief guest, Sri Rakesh Asthana sir, IPS, and all the esteemed dignitaries of Maims, MATE, and MABS. The agendas of our UN committees revolved around state-sponsored terrorism in the General Assembly, active war zones in Human Rights Council, combating gender-based violence in Commission on Status of Women, and creating a plastic-free economy in the Environment Program. The agendas of the Youth Parliament revolved around post-delimination states representation, and the All India political parties meet debated upon national strategies combating cross-border infiltration and terrorism. Alongside rigorous debating, throughout the course of past 2 days were the international press members who meticulously documented this conference. Behind the grandeur of this event was the dedicated Maims MUN Secretariat led by the amazing team of faculty members of the Department of Law who worked tirelessly for 3 months to ensure every detail was meticulously planned. Their collective effort turned a vision into an exemplary experience. The conference not only exemplified the institute's and Maims MUN Society's commitment to holistic student development, but also reinforced its vision of nurturing global citizens, ready to shape a better tomorrow. We take immense pride in presenting to you the journey. Thank you. Now we move ahead to felicitate our executive board members. Now I would request our dignitaries to come upon and felicitate our executive board members. Let's begin with our first committee, United Nations General Assembly, UNGA. Chairperson Animesh Pandey, Vice Chairperson Mandli, and Rapporteur Drishti. Moving on to the next committee, United Nations Human Rights Council, UNHRC. Chairperson Manya Prakash, Vice Chairperson Sanu Tiwari, and Rapporteur Nitya Krishna. Next, the United Nations Environment Program. Chairperson Arnab Gupta, Vice Chairperson Apratim Dixit, and Rapporteur Abhishek Tiwari. The next committee is the United Nations on the Status of Women.
Chairperson Arpit Jain, Vice Chairperson Shaurya Khanna, and Rapporteur Jagmohan Goyal. Moving forward to the All India Political Party Meets, AIPTM, Moderator Ayush Sharma, Deputy Moderator Paul and Frank Balagala. Next, we have the Lok Sabha. Speaker Adarsh Pratap Singh and Secretary Jay Shukla. And finally, the International Press, Head of IT, Anant Narayan. Let's have a huge round of applause for all our executive board members. And now comes the moment of great anticipation, the result announcement. We request our esteemed faculty members to kindly join us for the declaration of the results. Dr. Abhilasha ma'am and Ms. Hina Mungia ma'am for the UN committee, and Dr. Malika Tosha ma'am and Mr. Ishan Bharadwaj sir for the youth parliament results. The wait is over and the moment is in. Our UN committees have deliberated and decided. It is time to unveil the results. With pens down and resolutions aged, the fruits of diplomacy are revealed. Let's celebrate the outstanding efforts of our delegates and congratulate the winners. We are privileged to have our esteemed Chief Guest Sir, Shri Satish Gupta Sir and HOD Sir with us. Dear dignitaries, we request you to kindly award trophies to our winners and facilitate them for their exceptional performances. Your presence and blessings will not only honor the winners, but also inspire and motivate others to continue striving for excellence. Let's begin with the first category, Unka. United Nations General Assembly has spoken. The resolutions are passed and the global order is shaped. It is with great pleasure that we present our awardees. The first award, the Verbal Mention 1 goes to Egypt. Verbal Mention 2 goes to Ireland. Verbal Mention 3 goes to Algeria, and Verbal Mention 4 goes to the UK. Big round of applause for all these speakers. Honorable Mention 1 is Israel, and Honorable Mention 2 goes to Denmark. Can we please have the awardees on the stage? The special mention goes to Netherlands. Congratulations, Team
Commendation Award goes to India. India. I finally announce the best delegate is Cuba. Now we are allowed to announce United Nations Human Rights Council has decreed Advocates of Justice, your movement is filled. The award for Best Delegate goes to Lichtenstein. For the High Commendation Award, the dais is proud to recognize Tuvalu. The delegate receiving the special mention medal is Kenya. Congratulations to all of you. Verbal Intervention 1, Iceland. Verbal Intervention 2, Chile. Honorary Intervention 1, India. Honorary Intervention 2, Belgium. Congratulations to you all. Moving forward, we are more than delighted to announce the results for UNCSW, United Nations Commission on Status of Women. The award for the best delegate goes to Thailand. The award for the High Commendation is presented to Egypt. The special mention medal is awarded to Sweden. The honorable mention 1 is awarded to Switzerland and honorable mention 2 is awarded to Austria. I would also like to mention verbal mention to India, Russia Federation, Afghanistan and Estonia. Tons of congratulations to all the members. Next category. United Nations Environment Program has rendered its verdict. Champions of sustainability, your efforts are recognized. It is with great delight that we present the Best Delegate Award to Tuvalu. The award for high commendation is conferred to Japan. Big round of applause for everybody over here. Yes, cheer up.
passion, articulation, and conviction that each delegate brought decorum reflected the true spirit of democratic dialogue. On behalf of the Department of Law and the Maids Genuine Society, we take this opportunity to appreciate every participant who made this simulation both intellectually stimulating and profoundly engaging. And now, to announce the results of the Youth Parliament, I invite my colleague Dr. Malika Tosha to take over. Let us honor the exceptional talent that a truly defined modern United Nations means. AITBM, all India political parties meet to be announced right now. So let's talk about the delegate that demonstrated an unparalleled grasp of the agenda, strategic foresight, and exceptional articulation for the conference. The award for Best Representative goes to Shri Rajesh Ranjan. Please receive the award. I request Shivaji sir also to come and benefit from the reading for These are my seniors, they have taught me everything. Very good, very good. You keep in your mind whole life. Next, we recognize the delegate whose skillful diplomacy and constructive dialogues shone brightly throughout the session. The award for Best High Commendation goes to Mr. Akhilesh Yadav. Further, we wish to give the medal for special mention to Mr. Asaduddin Owaisi. Moving forward, let us now move forward for the award of Lok Sabha. This award honors the delegates who consistently demonstrated exemplary public speaking, negotiations, and leadership throughout the session. The award for Best Parliamentarian goes to Priyanka Gandhi. The award for High Commendation goes to Mr. Arun Goyal. We also give special mention to Shashi Tharoor. Honorable mention 1 to Shri Abhishek Banerjee. Honorable mention 2 to Kuldeep Indora. Verbal mention 1 to Shivraj Singh Chauhan. Verbal mention 2 to Narendra Modi. Verbal mention 3 to Naveen Jindal. We will now move on to the award distribution for the international press. We will start with the award for Best Photographer. The photographer who excelled in reflecting the debate through his lens of camera. The award for Best Photographer goes to Prakash. Now for the honor of the Best Journalist, we wish to call Kashmir Marwa. Kashmir Marwa, please come on the stage now. The award of Best Institutional Delegation goes to STTB Khalsa College. आओ सब लोग आओ सब आ जाओ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आओ इसके कारण पे आ जाओ सब आ जाओ हट लो इधर मैडम इधर आ जाओ काश्मीर में हमारी डेलीगेशन है इधर आ जाओ हां ऐसा
3, 2, 1, cut zero! चलो. Settle down. The students who have received their appreciations are requested to please settle down. बाकियों की खुशियों में भी शरीक होना है. बेटा सब टीचर्स के लिए आओ सभी टीचर फैकल्टी I request my student team to appreciate my colleagues, my wonderful team members, though they have joined just 1.5 to 2 months back. और जिस दिन ज्वाइन किया सर ने उसी दिन उन्हें हमें उनकी टीम में जोड़ दिया मेरे साथ. तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी की, अपने टीम मेंबर्स की स्पेशली, कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और हर चीज़ में हमें कदम से कदम मिला के चले. And just because chief guest sir has to go, quickly come my teammate members from advisors, secretaries, and everybody with their trophies and get a picture click with the chief guest sir. Yes, everyone please get your trophies and come here on the stage quickly. पीछे पकड़ो